السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میرے کلینک میں اکثر ایسے لوگ ایسی علامت بیان کرتے نظر آتے ہیں جسے پنجابی میں یا یوں سمجھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا، ان ممالک میں اسے ناف، درہن اس نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اگر عرب ممالک میں اس کا نام سمجھا جائے تو وہ سرہ کے نام سے جانتے ہیں، سرۃ البطن، پیٹ کی ناف، یعنی عرب ممالک اسے سرہ کے نام سے پہچانتے ہیں، اور انگلش ممالک، یورپین کنٹری اسے نیول یا امبیلیکل کارڈ کے ذریعے کے نام سے اسے جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک کامن سمپٹم ہے جس سے لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس کی جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے مریضوں کی اس کے متعلق کہ میری ناف یا مجھے درن پڑ گئی ہے، اور اسے انگلش ممالک میں نیول ڈسپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح اسے میں آپ کو آج یہ پہلے سمجھاؤں گا کہ یہ ناف پڑنے کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کازز آف نیول ڈسپلیسمنٹ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ امپراپر ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی اچھی خوراک نہ لینا، ایسی خوراک لینا جس سے بدن میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے، تو اسے اس کی خاص وجہ کہا جا سکتا ہے۔ پھر ٹراما، یعنی اچانک آپ کو کوئی شاک لگی ہے، آپ نے کوئی وزن کھینچا ہے یا آپ کو کھینچنا اچانک پڑ گیا ہے اچانک سے، تو اس طرح کر کے بھی آپ کے پیٹ کے مسل وہ کھینچے جا سکتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں یا سوکیٹ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ہوگی۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خوراک میں زیادہ تر، جیسے میں نے امپراپر ڈائٹ کی بات کی ہے، خشک چیزیں لے رہے ہوں تو پھر بھی ناف، زیادہ گرم چیزیں لے رہے ہوں تو پھر بھی ناف۔ اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ تو یہ تو اس کی مختصر وجوہات تھیں جس وجہ سے ناف پڑ سکتی ہے، درن پڑ سکتی ہے یا نیول ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اسے آج ہم نے طب یونانی یا سنگل آرگن لا کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے پہچانیں گے سب سے پہلے کہ ناف پڑی ہے کہ نہیں، اور پڑی ہے تو یہ صحیح اس کا معاملہ کیا ہے اور اس کا صحیح علاج کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ناف کے پیشنٹ ہیں بھی کہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آپ کی جو ناف کا پوائنٹ ہے، یہ جو 3 to 5 mm پوائنٹ آپ کے پیٹ کے بالکل وسط میں ہوتا ہے، جسے آپ ناف کے نام سے جانتے ہیں، سرہ کے نام سے جانتے ہیں یا نیول کے نام سے جانتے ہیں، جو پیٹ کے وسط میں، اور اسے بیلی بٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اسے بیلی بٹن، تمی بٹن، ان سب ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ آپ اس کے اوپر ایک سکیل رکھیں، یعنی فرض کیجئے کہ یہ سکیل ہے، اسے آپ نے آپ کے نیول، سرہ یا ناف کے اوپر رکھا ہے، اور یہ پستان، اس کا نپل، یہاں تک آپ نے اس طرح سے ناپنا ہے۔ پھر آپ نے اس طرح ناپنا ہے، جس سائیڈ پہ آپ کا نپل نیچے ہو، یعنی جس سائیڈ کا نپل نیچے ہو تو آپ یہ پکا خیال کر لیں کہ اس طرف کی ناف پڑی ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ اسے ناپ رہے ہیں تو سائز میں کمی آئی ہے آپ کی دائیں سائیڈ پہ، یہ دائیں سائیڈ والی جو نپل ہے یہ نیچے ہے، بائیں سائیڈ والا اوپر ہے، تو پھر آپ سمجھیں
कानून मुहरत अज़ा या तिब्ब यूनानी के मुताबिक कि आपके जिस्म का ये हिस्सा खुश्क सर्द कहलाता है, उज़लाती असाबी कहलाता है कानून के मुताबिक। तो हमने इसका इलाज गर्मी और खुश्की यानी गर्म और खुश्क ग़िज़ा दवा से इलाज करना है। तो मैं आपको इसका साथ इलाज भी बता देता हूँ कि अगर तो आपकी राइट साइड का निपल ये नीचे है बमुकाबला बाएं साइड, तो फिर आपने सादा सा छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, जिसमें अजवाइन देसी 2 चुटकी और पुदीना 2 टहनी। अगर पंसारी की दुकान से लेंगे खुश्क पुदीना तो वो भी 2 चुटकी। ये आपने आधे गिलास पानी में डालना है, इसमें गुड़ मिलाना है या फिर बाद में शहद मिलाना है, इसका कावा बनाना है। ऊपर से ढाँप के अच्छी तरह कावा बनाएं। जब ये बन जाए नीचे उतार के इसे पुन छान के दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद नीम गर्म हालत में इस्तेमाल करें। ये चंद दिन करने से आपका मसला बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने यूँ करना है कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड की निप्पल इसका ये नीचे है और राइट के ऊपर है, तो फिर आपकी धरण या आपको नाफ का मसला आपके लेफ़्ट साइड का है। तो लेफ़्ट साइड का ये एरिया बमुताबिक कानून मुहरत अज़ा अकॉर्डिंग टू सिंगल आर्गन लॉ ये गर्म तर है। तो आपने यहाँ पे तार गर्म या असाबी उज़लाती अग़ज़िया या अदविया इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने गुलाब के फूल उसकी 5-4 पत्तियाँ, सौंफ उसकी 2 चुटकी और इलायची सब्ज़ ये 2 अदद, ये तीनों चीज़ें आधे गिलास पानी में डाल के ऊपर से ढाँप के अच्छी तरह कावा बनाएं, पुन छान के उसमें शहद या गुड़ मिला लें। ये खाने के बाद नीम गर्म इस्तेमाल करें। चंद दिन करने से आपकी बाईं साइड की नाव का जो मसला बनता है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद ये तो मैंने आपको इलाज बता दिया। तो जो मैंने पहले इसकी काज़ेज़ बताई थी कि यानी इम्प्रॉपर डाइट, अपनी खुराक को सही करें, एतदाल के साथ खाएं, जो भी चीज़ खाएं खुश्क ज़्यादा ना खाती जाएं, बलगमी ज़्यादा ना खाते जाएं या गर्म ज़्यादा ना खाते जाएं। और फिर इन्हीं बेएतदालियों की वजह से एक और जो वजह बनती है नाफ की, वो बनती है मसल की मतलब कमज़ोरी की वजह से। यानी आपके जो बैली या पेट के मसल हैं इनकी कमज़ोरी भी जल्द नाफ पड़ने का सबब बन सकती है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके मसल भी ताकतवर रहेंगे। ये था इसकी मुख्तसर पहचान, इसका मुख्तसर इलाज। तो इंशाल्लाह इससे आपकी नाफ वो सेट रहेगी और मुश्किल सेट रहेगी। आपको किसी की मोहताजी भी नहीं लेनी पड़ेगी कि आप इसे जाके बार बार निकलवाएं। और ये भी एक बात याद रख लें, ये जो नाफ है असल में ये एक फ़िज़िकल एंड इमोशनल अटैचमेंट है विद आवर मदर। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, इस यूट्रस में होता है, तो ये इस नाफ नाड़ नल के ज़रिए माँ के साथ अटैच होता है। इसके अंदर ये 2 वेनें यानी 2 आर्टरी, एक वेन और एक यूरेक्टस यानी मसाने को जाने वाली नाली, ये चीज़ें होती हैं इसके इंग्रेडिएंट जिनके ज़रिए ये अटैच होता है यूट्रस के साथ। तो जब बच्चा पैदा होता है तो इसे काट दिया जाता है और ये थोड़े ही अरसे के बाद सूख के गिर पड़ता है, यानी साफ हो जाता है और इंसान का ये वहाँ बचा हुआ निशान उसके आखिरी सांस तक वहाँ नज़र आता रहता है। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें कि इसके ऊपर की तरफ तो निशान है जो रह गया है, अंदर की तरफ कोई निशान नहीं है। अब कोई इसकी अटैचमेंट नीचे अंतड़ियों के साथ कोई नहीं है, इसका कोई बज़ाहिर कोई फंक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर इसके ऊपर तेल डालें तो उसके ये फ़ायदे होंगे या इसकी मालिश करें तो उसके ये फ़ायदे होंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जस्ट एक अब निशान है जो बाकी रह गया है। नाड़, आपका नल, आपका नेवल, आपका अम्बिलिकल कार्ड, ये सब कुछ काट दिया गया है और ये सूख के गिर गया है। अब ये सिर्फ महज एक निशान है, इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है।
बॉडी के साथ, आपकी अंतड़ियों के साथ, आपके किसी भी लिवर, किसी भी ब्लैडर के साथ कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है। ये डिसकनेक्ट महज एक निशान है, और इस चक्कर में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे मालिश करवाते फिरें। हाँ, मालिश का ये फ़ायदा होता है कि जैसे जनरल हम मालिश करते हैं तो ये अज़ा को हमारे मसल को नरम करती हैं, तो यहाँ भी नरमी हो जाती है। इसलिए ये तो इसका मैंने आपको इसकी एनाटॉमी कुछ बताई है। तो आपने चेक कैसे करना है कि आपको नाफ कैसे पड़ी है, एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया है कि नापने वाला। दूसरा, आप सीधे खड़े हो जाएं, अपने पाँव जोड़ के खड़े हों, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे पाँव जोड़ के खड़े हो जाएं, और अपने हाथों के ये दोनों अंगूठे इस तरह कर लें। इनको आपने पाँव के अंगूठों को लगाना है, लेकिन ये याद रखें कि आपके घुटनों के जो जोड़ हैं ये पीछे को रहें। जब आप झुकेंगे, ये हाथ के अंगूठे पाँव के अंगूठे दोनों को लगाएंगे तो आपके घुटने आगे आने की कोशिश करेंगे। इनको आगे नहीं लाना, आपने पीछे रखना है। अगर तो खिंचाव पड़ता है और आपके हाथ के अंगूठे पाँव के अंगूठों को टच नहीं कर रहे आसानी से, आपको घुटनों के पीछे तकलीफ हो रही है, तो फिर आप समझें कि आप नाफ के मरीज हैं। एक और तरीका है कि आप उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेटने के बाद अपने दोनों पाँव की एड़ियाँ अपनी हिप के ऊपर लगाने की कोशिश करें। अगर लग जाए तो ठीक, ना लगे तो फिर भी आप नाफ के मसले का शिकार हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इससे आप चेक कर सकते हैं कि आप नाफ के पेशेंट हैं कि नहीं। और जो मैंने आपको इलाज बिल ग़िज़ा बताया है बगैर किसी दवाई के, वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका नाफ का मसला मुस्तकिल तौर पे हल हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम इंसानियों को सेहत याब रखे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।